Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. Today in the lecture, I am going to discuss the shortcut trick of finding the square root of a number. Square root of a number को आप 10 सेकंड से भी लेस के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में आज मैं बताऊंगी. दूसरी चीज अगर जो मैं बताऊंगी वो ये है कि अगर कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो उसका भी अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप एक नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे. द वेरी फर्स्ट नंबर इज अंडर रूट ऑफ 48. आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 48 का. 48 इज द वेरी इजीएस्ट नंबर दैट वी नो. ठीक है, 6 का स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करें तो वो क्या होता है 36 होता है. 7 का स्क्वायर अगर हम देखें तो वो क्या होता है 49 होता है. तो इट मींस 48 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, जो गिवन नंबर है दैट इज कंसीडर्ड टू बी x, उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं x कंसीडर कर लेते हैं. एंड y इज अनदर नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, जो क्या है नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ y number. Now how you will find out the number? If you want to find out the square root of x, then the formula is x plus y divided by 2 under root of y. ठीक है, अब 48 के नियर बाई जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, x मेरा क्या हो गया इस केस में 48 हो गया. नाउ 7 का स्क्वायर जो है दैट इज 49, तो y जो होगा दैट इज 49, वो कितना होगा 49 होगा. अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं निकालूं स्क्वायर रूट ऑफ 48, दैट कम्स आउट टू बी 48 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 49, राइट. सो 48 प्लस 49 is equal to 97. This is 97. Now this is 2 multiplied by 7, so this comes out to be 97 divided by 14. So the answer comes out when 97 is divided by 14, the approximate answer is equal to comes out to be 6.9285. This is the answer. So the square root of 48 is 6.9285. Now the another number that is square root of 99. You have to find out the square root of 99. As we also know that 99 is not a perfect square. This technique is applicable only when the number given is not a perfect square. वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर x जो हो गया वो क्या हो गया 99 हो गया. नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर इज y, दैट इज इक्वल टू 100. सो अप्लाई दैट फॉर्मूला. स्क्वायर रूट ऑफ 99 इज इक्वल टू 99 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 under root of 100. This comes out to be 199 divided by 2 into 10. ठीक है, as square root of 100 is 10, so this is 99.5 divided by 10. This comes out to be 9.95 is the answer of the given question. 9.95 जो है वो क्या हो गया, इसका approximate answer हो गया, not exact answer but it is the approximate answer. This technique is very useful when you are appearing for a competitive exam like maths olympiad, you are appearing like HTET exam, CTET exam or any SSC CGL exam. In any exam this technique is very useful to find out the square root of a number in just less than 10 seconds. 10 seconds से भी less में आप find out कर सकते हैं. Now the next question is 69. Find the square root of 69. As we also know that 69 is also not a perfect square, but nearby, if I am talking about the nearby perfect square is 64, that is 8 square. ठीक है, the difference between 64 and 65 is only 5 digit. And now if I am comparing the number which is perfect square but it is greater than 69, it is 81, 9 square, right. But y is considered to be the perfect square. It is the number that should be greater than, वो क्या होना चाहिए, इस नंबर से आपका बड़ा होना चाहिए. So यहाँ पर x जो होगा that is 69, वो क्या होगा 69 होगा, and y जो होगा that is 81. So square root of 69 is equal to approximately equal to 69 plus 81
divided by 2 under root of 81. This comes out to be 10 carry गया 1, 7, 14 and 15. 150 divided by 2 multiply by 9. This is 75. When 75 is divided by 9, this comes out to be 75. 3 के टेबल में जाता है ऑलरेडी. सो 3 के टेबल में अगर हम देखेंगे तो ये किस पे जाएगा? 25 पे. 25 and divided by 3. So the approximate answer is comes out to be 8.333. 69 का स्क्वायर रूट जो होगा that is approximately equal to 8.333. ठीक है. Now the next question is find the square root of, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. The number given is 79. So here x becomes 79 and y becomes 81. So square root of 79 is equal to 79 plus 81. 2 under root of 81. This comes out to be 160 divided by 2 multiplied by 9. This is 80. Now this comes out to be 8.89. So the approximate answer of square root of 79 is 8.89. But this technique is applicable only when the given number is not a perfect square, और वो क्या हो? एक perfect square ना हो. दूसरी चीज, नंबर जो है उसके नियर बाई स्क्वायर डिजिट तक आपको क्या हो? नंबर याद हो. इट मींस आप 3 डिजिट तक निकाल सकते हैं जहां पर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 20 तक आ जाएगा. 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो वहां तक के अगर आपको आंसर्स याद है, स्क्वायर रूट्स याद हैं, तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक in which when the number is given more than 2 digit, नंबर जो है वो क्या हो? 2 डिजिट से बड़ा हो और जो गिवन नंबर है दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो नंबर क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो. अब जब मैंने एक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर डिजिट नंबर की यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, यूनिट digit of number and unit digit of square. ठीक है. तो अगर नंबर की यूनिट डिजिट 0 है तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी? 0 होगी. दिस वी हैव प्रूव ऑलरेडी व्हेन आई डिस्कस द चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. अगर नंबर के डिजिट 1 है या फिर 9 है तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 होगी. अगर नंबर की डिजिट 2 है या फिर 8 है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होती है? 4 होती है. अगर नंबर की यूनिट डिजिट 3 है और 7 है तो उसकी यूनिट डिजिट जो है वो क्या होती है? 9 होती है. अगर नंबर की यूनिट डिजिट 4 है और 6 है, ठीक है, 4 या 6 में से कोई है तो यूनिट डिजिट इसकी जो होती है दैट इज 6. अगर नंबर की यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर की यूनिट डिजिट जो होती है वो क्या होती है? 5 होती है. ये कंसेप्ट जो है वो हमें याद रखना है. तो यहां से अब मैं स्क्वायर रूट निकालने का एक और शॉर्टकट तरीका जो है वो आपको बताती हूँ. जब एक नंबर जो है गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर हो, उसमें चाहे नंबर आपका कितना हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, आप लेस देन 10 सेकेंड्स के अंदर कैसे स्क्वायर रूट जो है वो उस नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट नंबर इज 4489. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4489. अब 4489 में मेरी यूनिट डिजिट पे क्या है? 9 है. ठीक है, यूनिट डिजिट पे 9 है तो इट मींस जो मेरा नंबर है वो क्या कंटेन करेगा यूनिट डिजिट पर? अगर इसकी यूनिट डिजिट 9 है तो मेरा यूनिट डिजिट पे क्या हो सकता है? नंबर की 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है. अब स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2-2 डिजिट्स का हम पेयर बनाते हैं तो इस 8-9 को हम छोड़ देते हैं. नाउ बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको कंसिडर करते हैं. नंबर इज 44. अगर मैं 6 का स्क्वायर देखती हूँ दैट इज 36. वो क्या होता है? 36 होता है. 7 का स्क्वायर में देखूं तो वो क्या होता है? 49 होता है. तो 49 तो 44 से बड़ा हो गया. इट मींस ये नंबर तो नहीं होगा.
अब आती है बात 6 की, ठीक है। 6 इससे छोटा है, 6 का स्क्वायर 36 जो है वो इससे छोटा है, तो यहाँ पर इस नंबर को हम कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो 6 है इसको इससे बड़े नंबर यानी कि 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42। अब 42 को मैं देखूंगी कि 42 जो है वो नंबर मेरा जो बचा हुआ नंबर है दैट इज 44, उससे क्या है छोटा है, उससे 42 44 से छोटा है, तो इसलिए इन दोनों डिजिट में से मैं जो बड़ी डिजिट है उसको कंसीडर करूंगी। सो आंसर ऑफ 4489 का जो आंसर होगा दैट इज 6767, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13456, ये नंबर है। इस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। भाई वंस और टेंस डिजिट का मैं पेयर बना लेती हूँ। 6 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास यूनिट डिजिट पे क्या होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है। अब बचा हुआ नंबर क्या है, 134 है, तो 11 का स्क्वायर जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 121 एंड 12 का स्क्वायर जो आता है दैट कम्स आउट टू बी 144। सो ये नंबर तो नहीं हो सकता, 11 ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 11 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। जब मैं 11 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आता है 132। अब 132 को मेरे को चेक करना है कि वो बचे हुए नंबर से छोटा है या बड़ा है। अगर तो वो छोटा है, 134 है नंबर, तो ये 132 134 से छोटा है। सो 132 जो है इससे छोटा होने की वजह से मैं यहाँ पे कौन सा नंबर कंसीडर करूंगी, बड़े वाला नंबर कंसीडर करूंगी। सो द आंसर कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 13456 इज नथिंग बट 116। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का, अगर वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है और अप टू द डिजिट ऑफ 5 डिजिट और 6 डिजिट है, तो आप आसानी से उस नंबर का स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17424। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है मुझे किस नंबर का, 17424। अब इसका जो है स्क्वायर रूट यूनिट डिजिट पे क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट पे 4 है तो नंबर मेरे पास क्या होगा, या तो 2 होगा, दूसरा नंबर जो है वो क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अब इस नंबर में से कौन सा नंबर होगा वो डिपेंड करेगा, मैं यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 13 का स्क्वायर जो आता है दैट इज इक्वल टू 169 और 14 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 196, ये होता है। तो 14 तो नहीं हो सकता, 13 ही होगा, ठीक है। अब 13 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 14 के साथ। 13 को जब 14 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 14 4 3 12 कैरी गया 1 3 1 3 एंड 4 एंड दिस इज 14, दिस कम्स आउट टू बी 182। ये आता है मेरे पास 182 आएगा। तो 182 जो है वो जो नंबर बचा हुआ है दैट इज 174 से बड़ा है, ठीक है। अब ये बड़ा है तो इन दोनों में से नंबर कौन सा कंसीडर होगा, जो छोटा होगा वो। जो स्क्वायर रूट जो आया 17424 का दैट इज 132। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11664, ठीक है, 11664। फिर से वही क्या आ गया, यूनिट डिजिट पे 4 आ गया, तो या तो नंबर 2 होगा या फिर 8 होगा। अब सिमिलर वे 11 का 10 का स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो 10 का स्क्वायर जो आता है मेरे पास वो क्या आता है, 100 आता है। 11 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 121। सो ये नंबर तो नहीं हो सकता, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 110 which is less than 116. So the square root of 11664 is nothing but 108. क्योंकि ये नंबर छोटा है तो मैं कौन सा डिजिट कंसीडर करूंगी, जो बड़ी वाली डिजिट है। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 108। अब एक और क्वेश्चन लेती हूं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप कहोगे मैडम आपने तो छोटे छोटे नंबर लिए थे, चलो एक बड़ा नंबर भी लेकर के मैं आंसर तुम्हें कैलकुलेट करके दिखाती हूँ।
नाउ द नंबर इज 65536। अगर मैं यूनिट डिजिट देखो तो यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। यूनिट डिजिट 6 है तो इट मींस नंबर क्या हो सकता है मेरे पास, या तो 4 हो सकता है यूनिट डिजिट पे, या फिर क्या आएगा 6 आएगा। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 655, 25 का स्क्वायर जो है वो अब तक आपको याद हो गया होगा, दैट कम्स आउट टू बी 625। 625 तो इससे छोटा रह गया। अब इसे बड़े नंबर का स्क्वायर देखते हैं, दैट इज 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो दैट कम्स आउट टू बी 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 6 6 36, कैरी गया 3, 6 2 12 एंड 3 15। नाउ दिस इज 6 2 12, कैरी गया 1 5। ठीक है, 6 7 6। सो इसका आंसर कितना आता है 676, बट 676 तो बड़ा है, तो 676 को तो मैं कंसिडर नहीं करूंगी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 25 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 26 के साथ। अब 25 को जब मैं 26 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, when 26 is multiplied by 25, 6 5 33 कैरी गया 13, दिस इज 6 2 12 कैरी गया 152, 056 650। ये कितना आता है 650 आता है, जो क्या है छोटा है 655 से। तो इट मीन्स मैं कौन सी डिजिट कंसिडर करूंगी, बड़ी वाली डिजिट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 65536 कम्स आउट टू बी 256। 256 जो है वो इस नंबर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इन जस्ट लेस देन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड से भी कम में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। when you do more and more practice, जब more and more practice करोगे तो कैलकुलेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड your one share means a lot for the channel. This is all about the today's video. Thank you for today.